రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళా భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ అన్ని రంగాల్లో వారికి 50% కేటాయిస్తున్నదని హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ అన్నారు. మీర్ చౌక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని జహీరానగర్ లో భరోసా కేంద్ర నిర్మాణం కోసం హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీతో కలిసి పునాది వేశారు. అనంతరం హోంమంత్రి మాట్లాడుతూ ఇటీవల జరిగిన జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మహిళల సంఖ్య ఇందుకు నిదర్శనమని అన్నారు. గృహహింస, వరకట్న బాధితులకు అవగాహన కల్పిస్తూ వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి పోలీస్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో భరోసా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. అనంతరం నగర పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ మాట్లాడుతూ రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని రంగాల్లో మహిళలు మరింత ధీటుగా రాణిస్తారని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి సమయంలో మహిళలు భద్రత చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా గుర్తించామని తెలిపారు. ఇప్పటికే దేశంలోని అత్యంత భద్రత కలిగిన నగరంగా గుర్తింపు పొందినట్లు సిపి తెలిపారు. అనంతరం హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ సమయంలో నగర పోలీసులు వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా కట్టుదిట్టమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ నగర ప్రజలను కాపాడేందుకు కృషి చేశారని ఆయన అన్నారు. మహిళల పట్ల గౌరవం పెంచుకోవాలని ప్రతి వర్గంలోని పవిత్ర గ్రంథాలు బోధిస్తున్నాయని సూచించారు. సమాజంలో భరోసా కేంద్రాలు అవసరం లేని వాతావరణం అందుబాటులోకి రావాలని అభిలషించారు. పాత నగరంలో 4 కోట్ల నిధులతో పోలీస్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిర్మించబోతున్న భరోసా కేంద్రం మహిళా సమస్యలను కూలంకుషంగా పరిష్కరించడానికి వేదికగా నిలవబోతుందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో యాకత్పుర, మలక్పేట్ ఎమ్మెల్యేలు సయ్యద్ అహ్మద్ పాషా ఖాద్రీ, అహ్మద్ బలాలా, ఎమ్మెల్సీ హసన్ హఫంది, పోలీస్ హౌసింగ్ బోర్డు చైర్మన్ దామోదర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. Sir, we request you to please come on to the dais and occupy the distinguished chairs, sir. I request Honorable Member of Parliament Shri Asaduddin Owaisi sir to please come on to the dais. I request Honorable Member of Legislative Council Shri Mirza Riyazul Hasan Effendi sir also to please come on to the dais. Honorable MLAs Pasha Kadri sir and Honorable MLA Ahmad bin Balala sir also to please come on to the dais. I request our very own Commissioner of Police Shri Anjani Kumar IPS sir to please come on to the dais. I request Shri Koleti Damodar sir, Chairman TSPHCL to please come on to the dais sir. I request our very special guest Srimati Swati Lakra IPS ma'am, ADG Women's Safety Wing to please come on to the dais ma'am. I request Srimati Shikha Goyal IPS ma'am, Additional CP Crime Science also to please come on to the dais ma'am. I request Dr. Anil Kumar IPS sir, Additional CP Traffic to please come on to the dais sir. Dr. Anil Kumar sir. I request Corporator Pathargatti Sri Syed Sohail Kadri sir to please come on to the dais. I also request our very own DS Chauhan sir, IPS to please come on to the dais sir. I request Dr. Tarun Joshi IPS sir, Joint Commissioner of Police Special Branch to please come on to the dais sir. I also request Deputy Commissioner of Police South Zone Sri Gajra Bhopal sir IPS to please come on to the dais sir. Thank you so much for taking time and honoring our invitation sir. Today marks the historical day in the annals of Hyderabad City Police as we are all set to lay the foundation stone for our new Bharosa Support Center at Zahiranagar, second in our Hyderabad city and also Center for Development and Empowerment of Women. I request our Commissioner of Police Hyderabad City Sri Anjani Kumar sir to please welcome our chief guest Honorable Minister for Home Shri Mahmood Ali sir by presenting a flag please. A big round of applause please. I request Commissioner of Police sir to also to please welcome Honorable Member of Parliament Shri Asaduddin Owaisi sir with a flag. I request CP sir to please welcome MLC sir also by presenting a bouquet. Thank you for accepting our small token of respect sir. Now I request Additional CP Crime Science Srimati Shikha Goyal IPS ma'am to MLAs
yes. To MLA Pasha Kadri sir and MLA Ahmad bin Balala sir also. Thank you for accepting, sir. Now I request Srimati Shikha Goyal, IPS ma'am, Additional Commissioner of Police, Crimes and Set, to please welcome our CP sir with a plan, please. Thank you, sir. I now request Srimati Shikha Goyal, IPS ma'am, to please present the plan to Chairman TSPHC, Polity Damodar sir. I request Shikha Goyal ma'am to please present the plan to ADG Women Safety Wing, Srimati Swati Lakra ma'am. Please a big round of applause. I request Additional DCP South to please present the plan to Corporator sir, Syed Sohail Khadri sir. Thank you so much for accepting our token of respect, sir. I now request the architect of today's historical event, President Police Award, Police Medal awardee, Srimati Shikha Goyal ma'am, to please present a welcome address. बहुत ऊंचा वो तो नमस्कार, आदाब। आज जहीरा नगर में एक नए भरोसा सेंटर और एक नए फैमिली काउंसिल सेंटर की फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इस मुबारक मौके पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महमूद अली सर, ऑनरेबल एमपी जनाब असुद्दीन ओवैसी, एमएलसी साहब मिर्ज़ा रियाज हसन, ऑनरेबल एमएलए पाशा कादरी साहब, ऑनरेबल एमएलए अहमद बलाला साहब, चेयरमैन पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन दामोदर साहब, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब स्वाति लाकरा, एडीजी वुमेन सेफ्टी, सिटी पुलिस के तमाम ऑफिसर्स, आज सब आप हमारे बीच में हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल थे, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। This new Bharosa Center is a center which is dedicated to providing healing touch and hand holding to the women and children and also to the affected family members in their journey for justice. 5 साल पहले तेलंगाना गवर्नमेंट और तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में पहले भरोसा सेंटर शुरू किया था। हमारे लिए ये खुशी का मौका है कि भरोसा सेंटर जिसकी 5वीं सालगिरह हम इस मई में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी का एक दूसरा सेंटर आज हम साउथ जोन में शुरू कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में
भरोसा सेंटर ने हज़ारों विक्टिम्स को सहायता दी और हम इस फिलॉसफी पे काम करें कि जितने हमारे पास विक्टिम जैसे स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस की जो विक्टिम्स आते हैं उनका जहाँ तक पॉसिबल हो फैमिली साथ में बनी रहे। और हम इस बात में हमें फ़ख्र महसूस होता है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे पास जो आए उनमें फैमिलीज़ में सुलह हुई और वो आज भी आपस में मिलजुल कर खुशी से रह रहे हैं। हम इसे एक अपना अचीवमेंट मानते हैं। साथ ही में भरोसा सेंटर जो रेप और सीरियस क्राइम के विक्टिम्स को सपोर्ट करता है, हैंड होल्डिंग करता है, उसमें हम लोगों ने उनकी पूरी मदद करी है। भरोसा एक वर्ल्ड क्लास सेंटर के रूप में सामने आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक आइडियल, एक मॉडल वन स्टॉप सेंटर करार किया है और सजेस्ट किया है दूसरी स्टेट्स को कि इस मॉडल को फॉलो किया जाए। हमें इसमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है। हम इस भरोसा सेंटर ने अपने 5 सालों में बहुत ही महिलाओं को हिम्मत दी कि वो उनके प्रति होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। हैदराबाद पुलिस में हमारा मानना है कि दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर घर की शान है औरत। और आज के इस समय में और आज के इस वक्त में घर की ही शान नहीं है औरत, वह घर से बाहर निकल के जिस भी फील्ड में गई है, चाहे आप लोग जब एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी पायलट लेडीज़ हैं, तो चाहे जहाज़ उड़ा रही हो और चाहे एक सड़क पे, हैदराबाद की सड़क पे ऑटो चला रही हो, चाहे पुलिस की वर्दी में पुलिस का काम कर रही हो या घर में अपने बच्चों को देख रही हो, जिस भी फील्ड में औरत आई है उसने उसकी शान ही बढ़ाई है। और हैदराबाद पुलिस, तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना गवर्नमेंट का ये एक मोटो था कि सभी महिलाएं अपनी बेझिझक पूरी सुरक्षा से अपने सपने को साकार कर सकें और किसी भी वजह से सिक्योरिटी के रीज़न से वो अपना सपना उनका अधूरा ना रह जाए। और इसी के लिए भरोसा और शी टीम्स का गठन हुआ था और इसी के का आज हम लोग कह सकते हैं कि हैदराबाद का कंट्री में वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है सब महिलाओं के लिए, और ये अलग अलग सर्वे भी बोलते हैं। और हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम इसको अचीव कर पाए। ये नया भरोसा सेंटर एक पहल है कि पुराने शहर से जो महिलाओं को अब तक हाका भवन तक दूर तक जाना पड़ता था, अब ये भरोसा सेंटर उनको उनकी तकलीफ़ को कुछ और कम करेगा क्योंकि ये अब और पास में आया। ये भरोसा सेंटर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये भरोसा सेंटर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होगी हमारी। और साथ ही साथ इस भरोसा सेंटर के साथ एक फैमिली काउंसिल सेंटर भी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है। इसके अलावा हैदराबाद सिटी में 12 अलग फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश होंगे। सबका यही एम है कि विक्टिम्स को जितना ईज़ हो, कि जितनी आसानी और जितना क्लोज उनके पास हम लोग पहुँच पाएँ। साथ ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग 3000 और कैमरा लगाएंगे, पेलिकन सिग्नल्स लगाएंगे, लेडीज़ के लिए डॉर्मेट्री बनेंगी, शी टॉयलेट्स बनाएंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स इसी एम से हैं कि हैदराबाद की जो सेफेस्ट सिटी की जो पोजीशन है वो पोजीशन बरकरार रहे और हम देश ही में नहीं विदेश में भी वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी रहें। And all this has been possible only with the cooperation and support of the dignitaries on the dais and all of you who have come here today. आपकी सपोर्ट और आपकी हिम्मत अफजाई के बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता। We are extremely thankful and grateful for all of you to come here. I extend a warm welcome to each and everyone who is here today. Thank you. Thank you, ma'am. As ma'am said, really, Jayana Nagar will be very renowned from now.
Congratulations, Zahira Nagar, for taking place in the history of the City Police and also Bharosa Center. Without wasting much time, I now request the dignitaries on the dais to please come up for the foundation stone laying ceremony, sir. First foundation. ఈ కాకలు దింపి I request all the dignitaries to please continue the unveiling ceremony of CDEW, sir, Center for Development and Empowerment of Women, plaque. I request all the dignitaries on the dais to please unveil the plaque for CDEW. Sir, please, sir, I request all the dignitaries to please come here for the unveiling ceremony of foundation stone for support center for women and children, Bharosa at Zahira Nagar. Thank you, sirs. Thank you, ma'ams. I now request Sri Anjani Kumar IPS, sir, Commissioner of Police, Hyderabad City, to please address the gathering.
Good morning to all of you. अस्सलाम वालेकुम. आज सबसे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे साथ हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महबूब अली साहब हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए और आज ये हैदराबाद शहर के दूसरे भरोसा सेंटर के फाउंडेशन स्टोन के लिए हम लोगों के साथ हैं. मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी मौजूदगी हमारे डिटर्मिनेशन को और भी मजबूत करती है कि हैदराबाद शहर जो मर्सर इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों से हिंदुस्तान के टॉप 3 सेफेस्ट सिटी में हमेशा रहा है और ख़ास करके क्राइम अगेंस्ट विमेन को जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में इजाफा हो रहा है, तो हमारे एमपी साहब की मौजूदगी से उसमें और ताकत मिल रही है. मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. हमारे चेयरमैन साहब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जनाब दामोदर साहब, जो हैदराबाद सिटी के तमाम प्रोजेक्ट, चाहे वो पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग का मसला हो, पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर का इशू हो, या इस तरीके का जो स्पेशलाइज्ड सेंटर बन रहा है, विमेन काउंसलिंग सेंटर, भरोसा सेंटर, उसमें हमेशा उनका बहुत स्पेशल अफेक्शन रहा है. मैं दामोदर साहब को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं. हमारे एमएलसी साहब गोल्डी साहब, जो हर किसी मौका पे सलाह मशवरा के लिए, चर्चा के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस पर ओपिनियन लेना चाहता है, कुछ मशवरा करना चाहता हूं, हमेशा वो मौजूद रहते हैं. मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. हमारे एमएलए साहब अहमद पाशा कादरी साहब, जो कि इसके पहले चारमीनार कंस्टिट्यूएंसी में जब थे और अभी हमेशा हर समय पुलिस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए, पब्लिक में उनकी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा मशवरा देते रहते हैं. मलाला साहब, जो कि अभी पिछले 1 सालों में खास करके कोरोना के समय जो मिलजुल कर हम लोगों ने पब्लिक का सर्विस किया और सफाई के काम में खास करके 2-3 जगह जहां बहुत ज़रूरत थी, उनकी मदद से हम लोगों ने मिलकर हेल्थ और हाइजीन पर बहुत ध्यान दिया, जिससे कि हैदराबाद शहर को बहुत मदद हुआ. मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. और ये जो आज एरिया है, यहाँ बलाला साहब, मुझे बताया गया कि यहाँ इसके ओरिजिनल कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं, तो खास करके उनकी मोहब्बत इस एरिया से और ज़्यादा है. अभी प्रेजेंट कॉरपोरेटर सोहेल साहब और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर YB श्रीनिवास साहब, जो मिलकर ये पूरा प्रोजेक्ट बनाए, और हमारे डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स, शिखा गोयल, स्वाति लकड़ा, अनिल कुमार चौहान, तरुण जोशी, DCP भोपाल, यहाँ पे हाजिर हमारे सभी DCP, जॉइंट CP और ऑफिसर्स, सभी को मैं कहता हूँ कि हैदराबाद शहर आज अगर हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में अच्छा नाम अगर कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा टीम वर्क का रिजल्ट है. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आज पहले से ज़्यादा इसकी अहमियत है. पहले वर्किंग विमेन का परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था, और लेकिन आज हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में हर जगह वर्किंग विमेन का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. उसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से, पार्लियामेंट के तरफ से बहुत नए नए कानून आए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और इस तरह की चीज़ें. लेकिन अब उसको अमल कैसे किया जाए, उसको पब्लिक में उसकी समझ और उसके बारे में अवेयरनेस कैसे हो, इसके लिए बहुत हम लोगों को काम करना है. हैदराबाद शहर आज की तारीख में
हर फील्ड में हम लोग अच्छा नाम कर रहे हैं और इसी कारण से यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसी कारण से यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और इन सबका फायदा हमारे अगले जनरेशन को होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट एक चेन रिएक्शन शुरू करता है और ये एक चेन रिएक्शन शुरू होता है नौकरी से, नौकरी के बाद तनख्वाह से, तनख्वाह के बाद उसी से डेवलपमेंट भी होती है, चूंकि गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ता है। तो ये एक साइक्लिक रिएक्शन का ये पहला स्टेप है। आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक लगभग 6 to 7% क्राइम में इजाफा होता है, क्राइम अगेंस्ट विमेन में। लेकिन नेशनल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में तेलंगाना और हैदराबाद में ये बहुत कम है, ये 2.5 से 3% है। तो इसका मतलब हम लोग हिंदुस्तान के तमाम दूसरे शहरों से ज़्यादा सेफ हैं, ज़्यादा महफूज हैं। इसके तहत हमारे जो स्पेशलाइज्ड विंग है, खास करके जो भरोसा सेंटर, जिसकी की बुनियाद रखी गई थी यह सोचकर कि एक छत के नीचे पुलिस, प्रोसिक्यूशन, हेल्थ, काउंसलिंग सेंटर, इकोनॉमिक बेनिफिट, कोर्ट सब एक जगह मौजूद हो। और जो पहला भरोसा सेंटर जो अभी सैफाबाद में काम कर रहा है, जिसके तहत बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, उसी को हम लोग एक तरह से कहिए यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं, जिसमें कि इस तरफ के लोगों को उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हैदराबाद में अभी तक पिछले 2 सालों में जो भरोसा सेंटर के तहत अच्छा काम हुआ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 76 कन्विक्शंस अभी तक मिले हैं अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन, जिसमें कि 10 लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। इसके अलावा 150 विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये नए भरोसा सेंटर के आने से इसमें और भी इजाफा होगा और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और भी बढ़ेगी। इसके साथ इस मौके पे शी टीम के लोगों को, खास करके हमारे ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये कोविड के आखिरी फेज में अब एक नया अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें कि जहां भी हॉट स्पॉट है, जहां लोग ईव टीजिंग या इस तरीके की वारदात होती है, वहां शी टीम्स के तरफ से अवेयरनेस कैंपेन का भी काम चल रहा है। तो जिसमें हम लोग सिरिसा जो हमारी एडिशनल डीसीपी हैं, उनके तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर मैं तहे दिल से यहाँ हाजिर सभी VIPs को, एंटायर सिटी पुलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उनको एक वादा भी करता हूं कि सर, हैदराबाद सिटी पुलिस का हर ऑफिसर, होमगार्ड से लेकर सीनियर ऑफिसर, हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट विमेन। और इसमें हम लोग और भी पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे और हैदराबाद का नाम पहले से और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you so much for the detailed report on Bharosa performance, sir. May I now request Honorable MLA Yakatpura, Sri Pasha Qadri, sir, to please deliver his speech. On the request of MLA, sir, I now request on our behalf as well, I request Honorable Member of Parliament Sri Asaduddin Owaisi, sir, to please address the gathering, sir. रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब महमूद अली साहब, वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना, मोहतरम जनाब अंजनी कुमार साहब, कोतवाल हैदराबाद, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा हैदराबाद सिटी पुलिस के तमाम मोअज़्ज़ज़ अफसरान व अहदेदारान, मेरी जमाती रुफ़ा, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज साउथ जोन में यहाँ पर एक भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है और आज इस सिलसिले में
वज़ीर दाखिला की जानिब से इस भरोसा सेंटर का संग बुनियाद भी रखा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस मुकाम में, जिस महल्ले में आज इस भरोसा सेंटर के संग बुनियाद रखा गया, उसका नाम ज़हरा नगर है। और आप और हम जानते हैं कि हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है, जिसको हम शहज़ादी जन्नत भी कहते हैं। और ज़हरा के माने ये बताए गए हैं कि मदद करने वाली। तो यकीनन ये भरोसा सेंटर उन तमाम परेशान और तकलीफ़ में मुब्तला ख़वातीन की मदद उससे साबित होगी। और साथ ही साथ ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे माशरे में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, या दलित हो, या बैकवर्ड क्लास से उनका ताल्लुक़ हो, या ईसाई हो, ये बात बिल्कुल मैं अपने छोटे से सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि हमारे इस माशरे में ख़वातीन से नाइंसाफ़ी होती है, ख़वातीन पर जुल्म होता है। और ख़ास तौर से जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के दरमियान में जहाँ पर सारी दुनिया में लोग अपनी इंसानियत के मुजाहरे कर रहे थे, पुलिस के लोग, हेल्थ के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, नर्सेस अपनी जानों को सामने रखकर, और फिर सियासतदान अपनी तरफ से खिदमत कर रहे थे, वहीं पर उसका एक जो डार्क पहलू था, एक ख़राब बात जो पूरे लॉकडाउन में नज़र आई, वो ये है कि घरों में जो ख़वातीन थी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत इजाफा हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बुराई का हम ख़ात्मा करें। और ये ख़ात्मा उसी वक्त होगा जब माशरे में एक शऊर बेदार होगा और हम ख़वातीन को अपने बराबर का हिस्सेदार समझें, उनको अपना ग़ुलाम ना समझे, ना उनको कमतर समझे। जब ये सोच में तब्दीली आएगी तो यकीनन ख़वातीन पर जुल्म का ख़ात्मा होगा। मैं हमारे मुसलमान भाई और बहनों से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लास्ट सरमन, उस आखिरी खुतबा जो मैं समझता हूँ कि सारी इंसानियत के लिए एक ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, डिक्लेरेशन है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। आपने फरमाया कि किसी को तकलीफ़ मत दो ताकि तुमको कोई तकलीफ़ ना दे। तो उलमा इकराम ने कहा कि तकलीफ़ ज़हनी भी हो सकती है, तकलीफ़ नफ्सियाती भी हो सकती है। इसलिए ये तमाम कायनात से कहा जा रहा है, तमाम इंसानियत से, कि किसी को तकलीफ़ मत दो ताकि तुमको तकलीफ़ ना हो। और उसी आखिरी खुतबे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों पर तुम्हारे हुकूक़ हैं जिस तरह तुम्हारे औरतों पर हुकूक़ हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में सबसे बेहतरीन अखलाक वाला वो है जो अपने घर वालों से और अपने घर के ख़वातीन से अच्छा सलूक और बर्ताव करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये तमाम वाक़यात को, जहेज़ की लानत को, औरतों पर जो फ़िज़िकल वायलेंस होता है, उनको कोई मारा जाता है, पीटा जाता है, ये सब ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे तो कहीं पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमारी उम्मत की माओं पर कभी हाथ उठाया? नहीं उठाया। इसकी तालीम ही नहीं है। जबकि हमको ये बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब शहज़ादी जन्नत मुलाकात करने आती या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुलाकात करने जाते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को देखकर खड़े हो जाते। ये हमको बताया गया है। तो इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस भरोसा सेंटर की हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर हम इन तमाम बुराइयों का ख़ात्मा कर देते। मगर ये हकीकत है और इस हकीकत को रोकने के लिए जो बुराई है, इस भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। और
मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो पुलिस के अहदेदारान यहाँ पर इस बिल्डिंग के तामीर होने के बाद यहाँ पर वो फायज होंगे, वो हमदर्दी से, शफक़त से और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो ख़वातीन यहाँ पर इनसे रुजू होंगी अपने मसले मसाइल को लेकर, वो उसको अच्छी तरीक़े से उनको समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे और इस माशरे की जो बुराई है इसका ख़ात्मा होगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे दो ख़वातीन आला पुलिस अहदेदारान जो यहाँ पर हैं, हमारे एडिशनल CP साहिबा मोहतरमा और मोहतरमा स्वाति लकड़ा साहिबा, जिन्होंने शी टीम के ज़रिए एक बेहतरीन हैदराबाद में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खिदमात अंजाम दे रही हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हम तमाम को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस बुराइयों का ख़ात्मा हो। और अभी होम मिनिस्टर साहब, वज़ीर दाखिला साहब बता रहे थे कि हमारे शहर में दोबारा कोविड का, कोरोना के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि तमाम एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करिए। ख़ास तौर से जो माशाल्लाह जो शादियों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, ज़रा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर हर शादी में दूल्हे से गले मिल जाएंगे। अगर आप गले मिलेंगे तो याद रखिए कोरोना आपको दूल्हा बना देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एहतियात करिए, दूर से दूल्हे को मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि कोरोना ऐसा है कि कभी किसी को दूल्हा बनाता तो कभी किसी को दुल्हन बना देता। तो दवाखाने अभी भी आबाद हो रहे हैं, इसको बचाइए अपने आप को। और जितना हो सके आप लोग वैक्सीन भी लीजिए। इंशाल्लाह मैं भी वैक्सीन लूँगा और वैक्सीन से हम तमाम को अपनी जानों को बचाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट जल्द से जल्द ये इस बिल्डिंग के काम को शुरू कराकर, बताया गया है कि 12 महीने में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरा जो सियासी तजुर्बा है, पुलिस गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम 12 महीने में नहीं होता, कम से कम 24 महीने में आप उसको ख़त्म कर दीजिए, मगर ज़रूर ख़त्म करिए। मैं फिर से हमारे कमिश्नर पुलिस साहब का, अंजनी कुमार साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके मातहत शहर हैदराबाद में सुकून है और वो तमाम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you so much, sir. We'll definitely live up to the expectations of people of Hyderabad city, sir, as we have been doing, sir. Thank you. I now request Sri Muhammad Mahmood Ali, sir, Honorable Minister for Home, Prisons and Fire Services, to please deliver his speech, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। ऑनरेबल MP हैदराबाद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, जनाब अहमद पाशा खादरी साहब MLA याकूबपुरा, जनाब अहमद बलाला साहब MLA मलकपेट, श्री के दामोदर साहब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जनाब अंजनी कुमार साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, जनाब DS चौहान साहब एडिशनल CP, श्रीमती शेखा गोयल साहिबा एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, श्री अनिल कुमार साहब एडिशनल DG ट्रैफिक, स्वाति लकड़ा साहबा एडिशनल DG वुमेंस विंग, जनाब तरुण जोशी साहब जॉइंट CP, जनाब श्री गुज्जा राव भोपाल राव जी DCP साउथ जोन, जनाब सैयद सोहेल साहब खादरी साहब कारपोरेटर पत्थरगट्टी, सलाउद्दीन साहब TRS इंचार्ज चारमीनार, मीडिया फ्रेंड्स, इस महफिल में आए हुए तमाम मेरे भाइयों बहनों, यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज ओल्ड सिटी में भी एक भरोसा सेंटर कायम किया जा रहा है। ये तेलंगाना स्टेट बनने के बाद और तेलंगाना स्टेट बनने से पहले जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, हमारे CM साहब ने तकरीबन पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाले
36 पार्टियों से मुलाकात की थी। बाज़ पार्टियों से तो 10-10 बार मुलाकात करना पड़ा था, क्योंकि सबको यही डर था कि तेलंगाना बनेगा तो यहाँ का लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल किया जाए। एक बात मशहूर थी, तेलंगाना में नक्सलिज्म भी बहुत ज़्यादा है। हर कोई यही सवाल करता था कि तेलंगाना आप हासिल कर लेंगे, हासिल करने के बाद तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं है, नक्सलिज्म को ख़त्म करना ये आसान काम नहीं है। इसके अलावा बहुत से मसाइल थे यहाँ पर, पावर के मसाइल थे, एग्रीकल्चर मसाइल थे। मगर आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस तरह तेलंगाना में लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। शीटी में अगर शुरू हुई तो वो तेलंगाना स्टेट में शुरू किया गया, हैदराबाद में शुरू किया गया। आज अदर स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, हमारी पुलिस की कारकर्दगी देखने के लिए। जिस तरह पुलिस यहाँ पर फ्रेंडली पुलिस की काम की, पुलिस का जो इमेज हमारे पास बढ़ते गया और लोगों के साथ पुलिस जो फ्रेंडली पुलिस रही, हमेशा उनके साथ ताउन करते रही, वो यकीनन एक मिसाली इक़दाम है। आज यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम तेलंगाना स्टेट के अंदर इतना प्यार और मोहब्बत बढ़ा है हिंदू मुस्लिम एकजाती के अंदर। आज लैंड ऑर्डर इतना अच्छा है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना बनने से पहले हमेशा फिसादात हुआ करते थे। पुराने शहर में मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, कभी कभी कर्फ्यू लग जाता था, लोग परेशान रहते थे। मगर तेलंगाना बनने के बाद से सिवाय भैंसे के कर्फ्यू तो कहीं नहीं लगा, वहाँ भी 144 लगा। वहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान बनाया जा रहा है और आइंदा वहाँ पर भी कभी फिसाद नहीं होगा, मैं आपको तहकीम देता हूँ। पुलिस वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त कर रही है और हमारे स्टेट की ख़ास बात यह है कि हमारे सीएम साहब ने तमाम हैदराबाद को, तेलंगाना को जगह जगह कैमरे नस्ब किए हैं। सीसीटीवी कैमरे सारे हिंदुस्तान में देखा जाए जितने कैमरे, उसका 65% कैमरे हमारे हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर है। आज हैदराबाद 16th रैंक है इंडिया वर्ल्ड के अंदर जो कैमरे से जो कंट्रोल किया जा रहा है। हैदराबाद, सैफराबाद और अदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैमरे के जरिए बहुत जल्दी क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। आज हमारे पास कोई भी क्राइम करके ये बात मशहूर हो चुकी है, नहीं तो चेन स्नैचिंग इतने होते थे, छोटे मोटे वाक़यात इतने होते थे कि लोगों में डर रहता था कि भाई हैदराबाद में कभी भी जाए तो कुछ भी हो सकता है। पर आज हैदराबाद में लोग मुझे आकर खुद कहते हैं, बिहार और यूपी के लोग आकर कहते हैं कि अरे भाई ये तो यहाँ पर आपके पास तो ताजुब होता है, लोग आधा किलो सोना पहनकर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ कर जाते हैं, कभी किस्म का डर नहीं होता। तो इतना अच्छा लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया गया है। मैं यकीनन हमारे कमिश्नर साहब को और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और शी टीम्स ये बहुत ज़रूरी है, भरोसा सेंटर ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में किसी जगह भी शी टीम्स नहीं थी, शी टीम्स हमारे पास से शुरू किया गया, भरोसा सेंटर हमारे पास से शुरू किया गया। क्योंकि मैं जब भी जिस भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से, तो कहते हैं कि फैमिली मैटर। तो हमारे में भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। यकीनन हमारे असद भाई ने जिस तरह कहा, हमें हमेशा अपनी बहनों औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करना चाहिए। फैमिली मैटर के अंदर हमेशा यही होता है कि औरतों से झगड़े शुरू होते हैं, बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। अगर हम अपने बहनों से, अपने फैमिली से, अपने लोगों से बहुत अच्छे रब्ज़त बरकरार रखें, आगे भी उनके साथ बहुत रेस्पेक्ट दें, हमारे सीएम साहब भी वही चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किसी स्टेट में भी हिंदुस्तान में असम्बली में बिल पास नहीं होगा कि 50% कारपोरेटर होना ज़रूरी है। आज हमारे पास कारपोरेटर में 50% महिला को दिया जा रहा है। आप जानते हैं पुराने शहर में भी बहुत सी हमारी बहनें कारपोरेटर हैं। उसी तरह मेयर को महिला को दिया गया, डिप्टी मेयर महिला दिया गया, हैदराबाद की एमएलसी भी महिला दिया गया। सीएम साहब का भी यही नज़रिया है कि हमें महिला को अच्छे से अच्छा मुकाम दिया जाए। वो दुनिया के हर तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर महिला बराबर का हिस्सा अदा करते हैं, तो हमारी बहनें भी बराबर का हिस्सा अदा करें और तरक्की करें और अपने शहरों का, अपने ख़ानदान और उनके हाथ बटाएं ताकि वो ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये यहाँ पर जो ज़हरा नगर के अंदर जो भरोसा सेंटर कायम किया जा रहा है, ये तकरीबन 4 करोड़ 8 लाख का है और इसका 9,775 स्क्वायर फीट है। एक बार ये मुकम्मल हो जाएगा, मैं असद भाई से वादा करता हूँ ज़रूर 2 साल के अंदर 100% मुकम्मल हो जाएगा। 1 साल का तो एस्टिमेट रखा गया है, मगर इंशाल्लाह 2 साल में इसे मुकम्मल किया जाएगा, उससे जल्दी ही किया जाएगा अगर आप समझते हैं तो। उसके बाद यहाँ होगा ये कि औरतों को बड़ी सहूलत है। भरोसा सेंटर का मतलब ये है
आप भरोसा किस पर करते हैं? लोग अपनी माँ पर, लड़कियाँ अपनी माँ पर भरोसा करते हैं, अपनी बहन पर भरोसा करते हैं। हमारी महिला टीम, महिला पुलिस भी उसी तरह आपको कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट करती है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर कोई यूज़ कर रही है किसी स्टेट की पुलिस तो तेलंगाना पुलिस है। कैमरे तो जगह जगह लगे हैं, पर कई पुलिस ऑफिसरों के पास गले में कैमरे होते हैं, इनके बटन में कैमरे होते हैं, फ़ोन इनके पास पिन में कैमरे होते हैं, मगर लोगों को महसूस नहीं होता। आज क्राइम हमारे पास इतना कम हो चुका है, नहीं ज़रूर इसलिए कि लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। मालूम होना चाहिए कि हम क्राइम करके बच नहीं सकते। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आज लोगों में बात यकीन से कह रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर क्राइम करके बच नहीं सकते। ये लोगों में एक आम बात आ चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए क्राइम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और ये भरोसा सेंटर से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और हम यही चाहते हैं, मैं जब भी हमें किसी पुलिस स्टेशन में जाता हूँ तो पूछता हूँ तो कहते हैं कि भाई ज़्यादातर केसेस ख़वातीन के केसेस हैं, फैमिली मैटर के केसेस हैं। तो इंशाल्लाह मैं यही चाहता हूँ कि कभी भी इस मसले को कोर्ट तक ना जाए, आपस में बैठकर इस मसले को हल किया जाए हमारे पुलिस महिला ऑफिसर से भी। और एक बात ये बताता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितना इंक्रूवमेंट हो रहा है उसमें 33% महिला को दिया जा रहा है। सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद फर्स्ट में 10,000 का जियो जारी किया था, जिसमें कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर थे। दूसरी मरतबा 17,000 का जियो जारी किया गया और अब 20,000 का जारी किया गया। पुलिस की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा रही है। और सीएम साहब ने इसमें एक बात कहा, 33% महिला होना चाहिए, ताकि हर पुलिस स्टेशन में महिला रहेंगे तो हमारी महिला बहनों के जो भी प्रॉब्लम है वो आसानी से खुल के बातचीत कर सकेंगे और उनके मसाइल हल कर सकें। आज जो यहाँ का बहुत बड़ा महिला सेंटर जो बन रहा है, ये भरोसा सेंटर, यकीनन हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ओल्ड सिटी में भी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और यहाँ के अतराफ़ के रहने वाले ओल्ड सिटी के महिला के लिए हेडक्वार्टर रहेगा। यहाँ उन्हें कोई भी मसाइल रहेंगे तो यहाँ कर वो मसाइल हल कर सकते हैं। मैं हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। वाक़ दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू। Thank you for your speech, sir. You have been a constant support and appreciate. You have been a constant support to police department and you always appreciate the police department, sir. Thank you so much, sir. May I now request our Commissioner of Police, sir, Sri Anjani Kumar IPS, sir, to please present a memento to Honorable Home Minister, sir, Sri Muhammad Mahmood Ali, sir. I request EP sir to please present a memento to Honorable MP sir also. Honorable MLC sir also, sir. Honorable MLA Pasha Kadri sir. Ahmad bin Balala sir. Corporator sir. Thank you, sir. Thank you for accepting mementos also. I now request Srimati Shikha Goyal IPS ma'am to please present a memento to Chairman TSPHC. CP sir. I request DCP South Zone sir to please present a memo to Additional CP Crime Science It ma'am, Srimati Shikha Goyal ma'am. I request DCP South Zone sir to please present a memento to ADG Women Safety Wing, Srimati Swati Lakra IPS ma'am. I request Additional DCP South Zone to please present a memento to Additional CP Traffic, Dr. Anil Kumar IPS sir. I request DCP South Zone Sri Gajrao Bhopal sir to please present a memento to Additional CP Elendo sir, Sri DS Chauhan IPS sir. I now request ACP Falaknama Sri Majid Garu
to please present a bouquet to, to please present a memento to Joint CP SB Tarun Joshi IPS sir. Dr. Tarun Joshi. I take the privilege of presenting a memento to DCP South Zone sir. Thank you so much for accepting our mementos as a token of respect, sir. I now request DCP South Zone, Sri Gajrao Bhupal IPS, sir, to please present formal vote of thanks. Very good afternoon. First of all, I would like to thank Honorable Minister for Home, Government of Telangana, Janab Muhammad Mahmood Ali. His presence here today shows the intent and seriousness with which the Government of Telangana has taken up the issue of women's safety and for making Hyderabad a safe city. I also thank Member of Parliament, Janab Masduddin Owaisi Saab, Member of Legislative Council, Mirza Riyazul Effendi, MLAs Ahmad Balala Saab and MLA Pasha Qadri Saab. With all your constant support, sir, we'll take this mission of safe city forward. I would like to thank Anjali Kumar sir, our Commissioner of Police, for his constant support in making this function a grand success. I would like to thank Sri Koleti Damodar Garu, Chairman, Police Housing Corporation, and his promise to complete this building at the earliest. I would like to thank Srimati Swati Lakra Madam, Additional DGP, Women Safety Wing, our Additional Commissioner of Police, Shika Goyal Madam, Additional Commissioner of Police, Anil Kumar Sir, Additional Commissioner of Police, Chauhan Sir, the Joint CPs, the Special Branch, Tarun Joshi Sir, and other Joint CPs, Srinivas Sir, Ramesh Sir, Vishnu Prasad Sir, and DCPs North Kalmesh and DCP Traffic Chauhan Sir. And finally, I'd like to thank all the media who've been here and all the guests for making it here. Thank you very much. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.